Hello everyone. So today we are going to discuss about the UC 2020 paper. Okay, we have already discussed the NAT part. Okay, and today we will be discussing about MCQ part, multiple choice questions. Okay, so we will be creating 2 to 3 parts. So today is the first part. We will be discussing around 7 to 8 questions, and further we will discuss in next parts, right? So we will start the video now. So this is the first question. Which option will replace the question mark? As you can see that there are certain figures given there. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is a series based question. So what are the series based questions? Certain figures are given and certain rules are followed by transferring from one figure to second, second to third, third to fourth, and you have to calculate, or you have to like find out the what will be the answer of the fifth figure, right? So in this type of questions, what you have to judge, that what is the difference between the first figure to second figure, what are the changes made from the first figure to second. As you can see that there are certain colored dots are given, the purple dots, the green dots, and the orange or the red or the brown dots, right? So the first dot, as you can see that the purple one, if we judge, we can easily see that these three dots are there. You can take any of the dot, okay, or any of the combination of dots. I'm taking, so this three dots, okay, so three equidistant dots. So where are these dots in the second figure? In second figure we can easily see that these are the dots. So from first to figure 2, we can see that the certain part is rotated anti-clockwise, right? So in the figure second, we can see the first figure is rotated anti-clockwise. In figure third, if we find that these three dots are where, we can easily see that there are three dots, right? So for second figure is also anti-clockwise rotated in the third to form the third figure, and in the fourth case we can see that these are the three dots. We can see that this is rotated in this direction. So obviously for the fifth figure you have to rotate these three dots in the further direction, right? So we can, where we can see these three dots are there, obviously here these dots should be formed. So in the figure A, okay, so these dots are there. In the figure 2 or the B part, three dots are not present, so your answer is not B. In the C also there is not three dots, so your answer is also not D. And in the D part also there is these three dots, okay. So in this part you got that it may be D or A. So further you can see that you have to find out that where are the other changes made. Okay, in the figure A and D, what are the changes made? As you can see, if you want to compare the green one, you can compare, or if you want to compare the brown one, you can also compare the brown one. I am taking the brown one, right? So as you can see, so there is a difference between the brown one. So here is the two dots, and here is the two dots, right? So here if we find out that three dots are there, right? And then these, okay, then these, and then these, okay. So obviously in the like next direction your dots will be in this direction, anti-clockwise, okay. So where you can find out, so in one option there is this, and in the other option there is this, okay. So obviously your answer is A, because D option में क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा ऊपर की तरफ rotate हो रहा है, right, which is not correct. So for this question your answer is A, okay. I think you got this. Chalo, we'll move to the next question. Okay, so a strip is rolled and then cut with two planes at the 45 degree as shown below, right? So paper को rotate किया गया, as you can see, and then these are cut by two planes. The middle part of the cut plane is unrolled. अच्छा, ओके. सो ये वाला जो पार्ट बचा है, मतलब ये वाला पार्ट जो कट करके ये हटा दिया गया है, ये वाला भी हटा दिया गया, एंड देन दिस इज अनरोल्ड,
राइट। तो विच ऑफ द ऑप्शंस रिप्रेजेंट दिस पार्ट, आपके कौन से वाले ऑप्शंस में आपका जो सेंटर वाला पार्ट है वो शो होगा, राइट। सो मतलब कि ये वाला आपको ये लाइंस जो दिखा रहे हैं वो आपको जज करना है, ओके। अच्छा, सो इसमें आपको क्या थोड़ा सा लाइक आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है एज। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जब भी हम पेपर को रोल करते हैं सो हम बहुत ज़्यादा टाइट रोल करते हैं, राइट। हमने अगर 4 रोल भी करे हैं सो वो एक ही साथ होंगे, हम ऐसे रोल करके उसको कट करेंगे सो क्या होगा, वो ऐसे ही कट होगा, लाइक इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा। वाई? बिकॉज हमने क्या किया है, उसको बहुत टाइटली रोटेट किया है। बट इन दिस केस आप देख सकते हो कि जो अंदर वाले का रोल है दैट इज स्मॉलर, मतलब उसका जो सर्कल फॉर्म हो रहा है दैट इज स्मॉलर, और जो बाहर वाले का है उसका सर्कल बड़ा बन रहा है। इसीलिए आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं मोस्ट ऑफ देम आर लाइक इन दिस डायरेक्शन, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा है एंड राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंसेस हैं दैट आर बिगर, ओके, ठीक है। बट इन द डी केस आपका क्या हो रहा है, वो इक्वी डिस्टेंस पे है, सो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। उस केस में आपका डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए बी एंड सी में आंसर फाइंड आउट करना है। यू कैन ट्राई दिस थिंग एट योर होम। आप क्या करो, आप ऐसा रोल बनाओ, राइट, आप इसको पेपर को ऐसे रोल करो एंड देन ट्राई टू कट द सीजर से। आप सीजर से ऐसे कट करो यहाँ से एंड यहाँ से कट करोगे आप, सो यू विल फाइंड दैट द इमेज विल फॉर्म लाइक दिस और दिस। आपका जिगजैग फॉर्म नहीं होगा। वाई जिगजैग नॉट फॉर्म? बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉनिकल तो बन नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि आप प्रेस करके जब कट करते हो देन दैट विल मे बी फॉर्म द जिगजैग, बट इसमें क्या हो रहा है, एक प्लेन से कट किया जा रहा है, जैसे वेजिटेबल्स को आप काटते हो ना, ठीक है। सो उसको क्या, हम पेपर को दबा नहीं रहे हैं, हम पेपर को ऑलरेडी ऐसे ही कट डाउन कर रहे हैं, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, दैट विल नॉट फॉर्म द कॉनिकल लाइक थिंग्स, सो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, राइट। अब आते हैं ए एंड सी में, राइट। अब दोनों में ही कर्व फॉर्म हो रहा है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आपका इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ओके। तो इस वाले अगर पॉइंट से आ रहा है सो व्हाट यू कैन सी कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है, ये सेंटर वाले का आपको बताना है। सो ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ रही है ना, मतलब यहाँ पे छोटी रहेगी बट मतलब जो आपका जो जैसे आप इसको निकालोगे ऐसे पेपर को, राइट। सो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बन रहा है, सी दिस थिंग है ना, मतलब ट्रेपेजियम के फॉर्म से बन रहा है, पहले छोटा है एंड देन थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका सी इज द राइट आंसर, ए इज नॉट, ठीक है, ए नहीं है। ए किस केस में ए बनेगा, अगर आपका ये जो रोटेशन हुआ है ना, ये रोटेशन आपका कैसे है, ऐसे करके ऐसे है, राइट। अगर यही रोटेशन आपका ऐसे होता, लाइक क्लॉकवाइज होता, देन ए विल बी द राइट आंसर, है, ठीक है। आपको घर ट्राई करना, यू कैन इजिली ट्राई दिस एंड देन यू कैन लाइक इमेजिन थिंग्स कि कैसे ये चीज़ फॉर्म हो रही है, ओके। तो सी इज योर राइट आंसर, okay. So this is the next question. The phrase shown below uses a particular font. Which of the options belong to the same font? मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ fonts दिए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है and then you have to find out which of the options have the same font as the above given font. Okay. So इसमें क्या होता है, आपको क्या देखना होता है कि what are the things specified in the above font. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, so यहाँ पे क्या है, एजेस बहुत ही शार्प हैं, ओके। सो अगर हम ए बी सी डी में देखें, सो सी में क्या है, जो एजेस आपके बन रहे हैं दे आर कर्व्ड, ठीक है। सो सी आपका आंसर नहीं होगा, राइट। इन केस ऑफ ए बी एंड सी, अच्छा एक चीज़ और मैंने क्या जज की, जैसे अगर ये जो यू फॉर्म बन रहा है, ओके, सो यू का जहाँ पे भी मिक्स है, मतलब जहाँ पे भी वो कनेक्ट हो रहा है, राइट, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका थिकनेस कम हो रही है, ओके, सिर्फ इस वाले फॉन्ट में, ओके। सो ए बी डी में अगर हम देखते हैं तो कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो ए में भी क्या हो रहा है, आपका थिकनेस कम हो रही है, ओके, एंड डी में भी क्या हो रहा है, आपकी
थिकनेस कम हो रही है। बट इन केस ऑफ बी, आप बी को जब देखोगे सो व्हाट यू विल फाइंड कि आपका जो थिकनेस है वो कम नहीं हो रही है, राइट वो आपकी जो थिकनेस है दैट इज सेम, सो बी इज नॉट योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल फाइंड दैट विच ऑफ द ऑप्शन लाइक ए एंड डी में से कौन सा करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करनी है, व्हाट दैट इज कि भाई जो हमारे एजेस हैं, दीज आर द एजेस, आप जितने भी एजेस देखोगे दे आर आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे ये वाला वर्टिकल हो गया, दीज आर द हॉरिजॉन्टल वंस, राइट, दीज आर द वर्टिकल वंस। बट इन केस ऑफ ए में क्या करोगे, आप देखोगे दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज इट एट एन एंगल, ये कुछ वर्टिकल से एंगल बना रहा है। बट इन केस ऑफ डी आप देखोगे सारे ही आपके या तो वर्टिकल होंगे या तो हॉरिजॉन्टल होंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई ए इज नॉट योर करेक्ट आंसर एंड डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो वी विल मूव फर्दर। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा आपका लाइक विजुअलाइजेशन बेस पे ही है। आस्था इज सेलिंग अ पेपर बोट इन स्टिल वाटर, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन करेक्टिवली, ठीक है। आपको 4 फिगर्स दिए गए हैं एंड उनकी क्या है, आपको वाटर इमेज दी हुई है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला वाटर इमेज इसका करेक्ट है, राइट। अगर हम ए बी सी डी में से जज करें, ओके, देखें, सो उसकी जो आस्था है उसका एक पैर क्या है, दैट इज थोड़ा सा पीछे है और एक पैर थोड़ा सा पानी के जस्ट पास में है, राइट। सो जो भाई पास में होगा ऑब्वियसली उसका जो नी होगा, जो इमेज में जो नी होगा दैट विल बी क्या, लॉन्गर, ठीक है। जो उसका पार्ट सॉरी जो उसका पार्ट है लेग का वो क्या होगा, जो पास में होगा पानी के वो क्या होगा, वो बड़ा दिखेगा, राइट। सो इन केस ऑफ सी, ओके, इन केस ऑफ सी एंड इन केस ऑफ ए, ठीक है, ए और सी में क्या हो रहा है, जो भाई पास है उसका जो नी है दैट इज शॉर्टर, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ए और सी आर नॉट करेक्ट, तो ए और सी को हमने हटा दिया, राइट। इफ वी जज द बी एंड द डी, अगर हम बी और डी में देखते हैं सो भाई डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आर इन द आईज, राइट। आप इसकी आईज देखोगे जब, ठीक है, सो उसका जो ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज डाउनवर्ड्स, है ना। सो इसमें भी क्या होगा, आपकी वाटर इमेज में दैट विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ डी, अगर इसका ये ब्लैक पोर्शन है वो नीचे दिख रहा है, सो इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ ऊपर हो जा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो डी इज नॉट करेक्ट देन एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। An illustration of a walking ant and a pair of glasses lying on the table surface is shown. Which is the correct illustration from the ant's current point of perspective? Right? So आप लोगों ने perspective पढ़ रखा होगा, right? सो आपका जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, वन इज द बर्ड्स आई व्यू एंड द सेकेंड इज द एंड्स व्यू और द इंसेक्ट व्यू, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, आपका एंड्स व्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो आप ऑप्शन में दे सकते हो कि जो एंड का व्यू बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको ऑप्शंस से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर होगा, सो स्टार्ट फाइंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑप्शंस, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ऑप्शंस में, विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस हैंडल, जो आपका राइट हैंड साइड का जो हैंडल है ना उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज को देखते हैं। सो एंट अगर इधर से देख रहा है सो उसका कुछ ऐसे देखेगा वो, ठीक है, उसका जो आई का व्यू है वो कुछ इस अलाइनमेंट में है, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन बी है, अगर हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी की बात करें, ठीक है, सो ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, आपका हैंडल ही बाहर दिख रहा है, उसे दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। सो अगर हैंडल ऐसा होता, ओके, देन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता, बट आपका हैंडल अंदर की तरफ है सो उसे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अच्छा, अब अगर हम सी की बात करें तो उसको भी सी में भी उसका जो हैंडल है स्पेक्स का जो, उसका क्या हो रहा है, अच्छे से विजिबल है, राइट। सो अगर वो यहाँ से देखता तब जाके पॉसिबल होता कि हाँ भाई इसका हैंडल प्रॉपरली विजिबल होता उसको,
ठीक है, इस एंगल पे रखा होता। ऑल्सो आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी देखना कि भाई इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, उससे भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। ओके, सो सी आपका अंदर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका हैंडल अंदर नहीं है, तो सी आपका आंसर गलत हो जाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द ए एंड ऑप्शन डी, ए और डी में क्या है, इसके दोनों हैंडल तो करीब करीब सेम है, और आप बाकी चीज़ें भी अगर कंपेयर करोगे सो उसमें भी क्या है, आपको सिमिलर दिखेगा। ठीक है, सो आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे सो कहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस यू विल फाइंड डिफरेंस हियर। ठीक है, डिफरेंस आपको यहाँ दिखेगा, राइट। सो डिफरेंस क्या है, लेंथ में डिफरेंस आता है, लेंथ में डिफरेंस आ रहा है इन द हैंडल्स। ओके, सो भाई यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें सो ये आपका क्या पीछे रखा हुआ है, दिस पॉइंट इज बैक फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट के पीछे है। ठीक है, बट इन केस ऑफ डी ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉइंट पे ही रखा है, एक ही बेस पे रखा हुआ है, एक ही जगह पे रखा हुआ है, इसीलिए इसका जो हैंडल है उसकी लेंथ क्या है, उसके स्पेक्स के लेंथ के बराबर मुझे लग रही है, राइट। जब भी हम कोई चीज़ें पीछे की तरफ रखेंगे सो ऑब्वियसली उसकी जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डी आंसर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस लेंथ आपका ए आंसर होगा, राइट। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rolled yellow paper cylinder is rotating clockwise direction at a constant rate of 1 revolution per second. मतलब कि ये रोटेट कर रहा है clockwise, ठीक है, at a rate of 1 revolution in 60 seconds, मतलब कि 1 मिनट पे ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। ओके, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, सो ये 60 सेकेंड्स बाद ये डॉट फिर मेरे इसी पोजीशन पे मेरे सामने होगा। ओके, अ पेंसिल इज टचिंग द पेपर सिलेंडर एंड इज मूविंग फ्रॉम T1 to T2. ओके, सो दिस इज द पेंसिल। ओके, सो दिस इज मूविंग फ्रॉम T1 to T2, वर्टिकल डायरेक्शन में एक पेंसिल मूव कर रही है इन 10 सेकेंड्स, मतलब कि इस पॉइंट से पॉइंट A to B जाने में उसको 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, एंड स्टॉप्स फॉर 10 सेकेंड, मतलब कि T2 पोजीशन पे वो 10 सेकेंड्स रुकी रहती है वो पेंसिल, राइट। देन इट मूव्स टू द T3 इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब कि इसने 10 सेकेंड्स यहाँ काम किए, ठीक है, 10 सेकेंड्स में ये ऊपर गई एंड 40 सेकेंड्स में ये ऊपर गई, मतलब T2 से T3 में ये 40 सेकेंड्स इसने लिए। ओके, सो टोटल जो टाइम लिया इसने कंप्लीट करने में फ्रॉम T1 to T3 इज व्हाट, 60 सेकेंड्स, 40 + 10 + 10, that is written here, total time is 60 seconds as shown in the figure 2. ठीक है, what will be the graph on the paper when it is unrolled? ओके, सो आपको क्या करना है, you have to find out the graph, आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ होगा ड्यू टू दीज पेंसिल्स, मतलब पेंसिल तो एक ही है बट उनका टाइमिंग अलग अलग है एंड दे आर मूविंग। ओके, इट इज़ मूविंग। सो अगर हम इसकी बात करें सो हमारे पास मान लो ये एक पेपर है, ठीक है, अब ये पेंसिल है, यहाँ पे ये पेंसिल ऊपर की तरफ मूव कर रही है, राइट, एंड पेपर क्या हो रहा है, पेपर भी ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, सो क्या होगा, जैसे एक टाइम पे पेंसिल ने यहाँ पे ड्रॉ किया, दूसरे टाइम पे पेंसिल यहाँ पे ऐसे पहुंचेगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, राइट। सो ये क्या 10 सेकेंड्स में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कंप्लीट होगा। अच्छा, 10 सेकेंड्स में क्या हो रहा है इसका मतलब यहाँ इसका 1/4 नॉट, मतलब 60 सेकेंड्स में क्योंकि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, सो क्या हो रहा है कि वो एक सर्टेन पार्ट वो कंप्लीट कर लेगी ही 10 सेकेंड्स, राइट। अब हम ग्राफ से कंपेयर करते हैं इन द A, B, C एंड D। देखो सब में क्या हो रहा है, ये ऐसे से ऐसे मूव कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट फ्रॉम T1 to T2, मतलब T1 पे ये यहाँ थी पेंसिल और T2 पे ये यहाँ पे पहुँच गए पेंसिल, राइट। सो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे हुआ, अब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे हुआ है, देन ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, 10 सेकेंड्स के लिए वो रुक जा रही है। सो ऑब्वियसली अगर वो मूव नहीं कर रही है ऊपर की तरफ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, सो दे विल फॉर्म अ सिंगल लाइन, ये सिर्फ एक लाइन ही फॉर्म करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये सिलेंडर है, अगर मैंने यहाँ पे पेंसिल लगा दी और आप इसको रोटेट करते जाओ और पेंसिल क्या ड्रॉ करेगी,
एक सर्कल ही ड्रॉ कर पाएगी, बट आप इसको खोलोगे सो दैट विल फॉर्म अ लाइन, राइट, जो यहाँ से यहाँ तक का क्रिएट हो रहा है। आप हर ग्राफ में देखोगे एक स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर बन रही है, ठीक है। देन फ्रॉम द T2 टू T3 क्या हो रहा है, 40 सेकेंड्स में वो पूरा कंप्लीट कर रही है, ठीक है। देन क्या हो रहा है, 40 सेकेंड्स मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है आपका, दिस इज द 40 सेकेंड्स वाला डिस्टेंस, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ से ही फाइंड आउट करना है कि भाई बनेगा कैसे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे हम स्टार्टिंग की बात, ओके, सो जैसे कि अगर मैंने बात करी जैसे पहले, ठीक है, सो अगर यहाँ से ये मूव कर रही है, सो कोई कर्व क्यों फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, सो ऑब्वियसली ये धीरे धीरे ऐसे मूव करेगी, ओके। सो एक स्लैंटिंग ही हाइट आएगी, दे विल नॉट फॉर्म अ कर्व, ठीक है। जैसे कि ये बाकी आपके B, C, D ऑप्शंस में दिया हुआ है, दे विल नॉट फॉर्म अ कर्व, ठीक है। आपके ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है, दैट इज ए, ठीक है। फिर अचानक से इस पॉइंट पे आके अगर पेन रुक जाता है, देन फिर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। सो दिस विल फॉर्म अ एज, मतलब एज एक फॉर्म करेगा, एक कॉर्नर फॉर्म होगा जो कि आपका सिर्फ C में है और D में है और A में है। बट अगेन फिर यहाँ के बाद क्या होगा, ये फिर यहाँ इस पॉइंट के बाद फिर से स्ट्रेट लाइन चलेगी, ठीक है। सो इस वजह से योर आंसर इज A, नॉट C, D और B, ओके, दैट इज वाई योर आंसर इज A, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, एन ओपेक सर्कुलर डिस्क इज पैरेलल टू द टॉप टेबल, ठीक है। ये आपके पास कोई डिस्क रखी हुई है विच इज पैरेलल टू द टॉप ऑफ द टेबल, अ बीम ऑफ सनलाइट कास्ट इट्स शैडो ऑन द टेबल on the table top as shown in the figure. Which of the options represent the shape of the shadow as seen in the top view of the table? मतलब कि अगर यहाँ से लाइट्स पड़ रहे हैं, राइट, यहाँ से इस पे लाइट्स पड़ रहे हैं, सो आपके टेबल पे जो शेडो बनेगा इस डिस्क की वजह से वो किस फॉर्म में होगा, इन दीज ऑप्शंस में से कौन से फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सनलाइट, अब सनलाइट के बारे में बात करते हैं, इट इज़ अ लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है लाइट, सो ऑल द रेज कैन बी टेकन एज ए पैरेलल रेज, राइट। सो अगर हम बात करते हैं जैसे कि, सो यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ बनेगा, जो इस ये वाला पोर्शन है इससे भी लाइट जाएगी एंड देन वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट से बिकॉज ऑफ दिस विल फॉर्म अ शेडो, ठीक है। बट आपके पास जो डिस्क है दैट इज ऑफ सर्कुलर, ठीक है, तो वो हर पॉइंट से जाके, अगर मैं बोलूँ आपके पास क्या है कि यहाँ पे टेबल है, ठीक है, आपके पास टेबल है और आपने क्या करा है, यहाँ से टॉर्च ऊपर से करा है, सो आपके टेबल पे कैसा फॉर्म होगा, सर्कुलर ही फॉर्म होगा, राइट, अगर हम टॉप से उसको देखते हैं। बट इस केस में क्या हुआ है, एक एंगल पे रखा गया और थोड़े डिस्टेंस पे रखा गया है, सो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज अगेन द सर्कुलर डिस्क तो सर्कुलर ही है, सो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मे बी उसके शेप में या फिर साइज में डिफरेंस आ सकता है, बट आपके शेप में डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू द एज ऑफ द डिस्क, ठीक है। सारी जो लाइन सनलाइट की आ रही है दैट आर पैरेलल एंड दैट विल क्रिएट अ सर्कल, ठीक है। इस फिगर में, इस टेबल पे आपको लाइक एलिप्स दिख रहा है बिकॉज ये पर्सपेक्टिव में है, दिस टेबल इज पर्सपेक्टिव, बट आप ऊपर से देखोगे जब इसको, सो आपको क्या टेबल पे सर्कल ही फॉर्म होगा, दैट विल फॉर्म अ सर्कल ओनली, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस आप ये चीज़ घर पे भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई एट होम, कि भाई यहाँ पे आपने टेबल रखी एंड देन आप पेपर पे एक सर्कल कट करके एंड देन ऊपर से टॉर्च की लाइट दीजिएगा, या फिर आप थोड़ा और ऊपर से कर सकते हैं, बिकॉज यू कैंट कंपेयर द टॉर्च लाइट फ्रॉम द सनलाइट, right, but you can try at home and then you can get easily the answer. So here the answer is C only, okay, rest are wrong. So this was the video of the first part. ये first part आपका complete हो गया है. In the next videos we will be discussing more questions about the UC 2020 paper. I hope you like the solutions and you like the video. Okay, thank you and bye bye.